जी students, are you with me? Irtaza, Riyaz, Muqaddas, please come back. Leave them जी now. जी मैम जी। छोड़ दे उनको, उनकी वजह से इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लास टाइमिंग नहीं पता थी उनको। जी जी मैम प्लीज फोकस ऑन द टेक्स्ट पता नाउ। थी। ओके मैम। जी, Parvez could not deny that he loved crispy bacons, smothered with mushrooms and mustard and sandwiched between slices of fried bread. In fact, he ate this for breakfast every morning. What does it show? It shows the element of mimicry and hybridity. That Parvez is a hybrid identity now. वो दोनों को साथ लेके चल रहा है ना, ठीक है। उसने वो चीजें अडॉप्ट कर ली हैं, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, एवरीथिंग इज चेंज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। एक स्टेटस सिंबल को उसने फॉलो किया है और उसने अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो साउथ एशियन है ना, हमारा ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ऐसे ही है। नाउ इट शोज द एलिमेंट ऑफ मिमिक्री एंड हाइब्रिडिटी। नोट करते जाएं साथ साथ। Ali then reminded Parvez that he had ordered his own wife to cook pork sausages, saying to her, "You are not in the village now. This is England. We have to fit in." Underline these lines. This is the struggle of Parvez, that we have to fit in. कि हमें इस सोसाइटी में फिट होने के लिए खुद को चेंज करना है। और वो अपनी वाइफ को क्या कह रहा है? दैट यू आर नॉट इन विलेज नाउ, कि विलेज नहीं है कि तुम उस तरह के देसी खाने खाओ या देसी पराठे बनाओ। तो अब हम विलेज में नहीं है। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स। Parvez was so annoyed and perplexed by this attack that he called for more drink. ठीक है, समझ आ गई है? वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ये इसको एक अटैक कंसिडर कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ पे अली ने। द प्रॉब्लम इज दिस, द बॉय सेड। He leaned across the table. For the first time that night, his eyes were alive. You are too implicated in Western civilization. Underline these lines. You see, the writer has used the word implicated in Western civilization. Implicated means that if someone is involved in a crime, ठीक है? If someone is involved in the crime, implication का word उसने use किया है, that you are too implicated in Western civilization. Underline this line. This line shows the mentality of Ali, and this is what Ali thinks about his father, that his father is involved in a crime. So according to him, adopting the Western civilization means as if someone is involved in a crime. Crime क्यों कह रहा है इसको? कि वो अपनी उसकी जो real identity है उसको उसने question mark कर दिया, उसको negate करके वो Western civilization को adopt कर रहा है। ठीक है? This is the stance of Ali. Ali की mentality यहाँ पे expose हुई है। Parvez burped. Do you know what is burped? He thought he was going to choke. Implicated, he said, but we live here. उसको भी word implicated जो है यहाँ पे वो खुद इस चीज से थोड़ा shocked हुआ है कि उसने implicated का word use किया है। But we live here means this is the idea of third space. But we live here means कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अली दिस इज द थर्ड स्पेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको वो रूल्स, वो स्टेटस नहीं देते जो वो वहां के सिटीजन को देते हैं। तो ये थर्ड स्पेस में रह रहे हैं। थर्ड स्पेस मींस दे आर अदर टू देम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, थर्ड स्पेस का मतलब समझ आ गया है?
The family of Parvez is not equal to the status of Britishers. Equal space नहीं है, third space है. They are other to them. उनको चाहे जो भी वो वहां पे रह रहे हैं, चाहे 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको वो स्टेटस, वो फैसिलिटीज नहीं दी गई जो ब्रिटिशर्स एंजॉय करते हैं. क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी के स्टार्ट में ही आपने देखा है, दे वर्कड एट नाइट्स, रातों में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि डेज में उनको स्पेस नहीं मिल रही. दे आर फॉलोइंग देम, दे आर नॉट इक्वल टू देम. वो उनको फॉलो कर रहे हैं. फॉलो करने वाला हमेशा पीछे होता है. वो उनको फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, वो उनकी इक्वल नहीं है. नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरलाइन नेक्स्ट लाइंस. Please mute yourself. Students, please mute yourself. There is a lot of distortion and I can't read in this situation. Asad, please mute yourself. Bete, what is the problem? Please mute yourself. मैम जी मेरा तो कब का म्यूट है. ये किसका शोर आ रहा है? Okay, the next line is very important. The Western materialists hate us. Ali said, Papa, how can you love something which hates you? Very, very important line. The Western materialists hate us. Ali said, Papa, how can you love something which hates you? This is very important line. It reveals the thoughts of Ali. उसकी लॉजिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना. द वेस्टर्न मटेरियलिस्ट, ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एड्रेस करके कह रहा है कि वो तो हमें इक्वल स्पेस नहीं देते, वो आइडेंटिटी नहीं देते. 20 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं. वी आर नॉट एंजॉयिंग दैट मच फैसिलिटीज एज ब्रिटिशर्स डू. देन व्हाई वी आर लिविंग हियर? व्हाई वी आर अडॉप्टिंग देयर नॉर्म्स, देयर ट्रेडिशंस? What is the answer then? Parvez said miserably, according to you. अब वो उसी से पूछ रहा है कि जो तुम सोच रहे हो तो इसका आंसर है क्या, क्योंकि परवेज खुद नहीं जानता है. Ali addressed his father fluently, as if Parvez were a rowdy crowd that had to be quelled or convinced. Underline this line. The law of Islam would rule the world. The skin of the infidel would burn off again and again. The Jews and Christians would be routed. The West was a sink of hypocrites, adulterers, homosexuals, drug takers, and prostitutes. This is the complete picture that reveals Ali's mentality. Okay, who will tell me the stance of Ali now? Ali क्या सोच रहा है? मैम जी अली का ख्याल यही है कि वेस्टर्न जो है वो हमसे नफरत करते हैं. बेटा आई थिंक ये रियाज के घर से इतनी डिस्टॉर्शन है. रियाज मैं आपको म्यूट कर दूं? जी मैम उसी के बच्चे हैं. ओके जी असद प्लीज कैरी ऑन. मैम जी वो कहता है जब ये वेस्टर्न हमसे इतनी नफरत करते हैं या हमको अपना बराबर के शहरी नहीं समझते और इनका जो इन्वायरमेंट है या इनका जो कल्चर है वो हमसे टोटली डिफरेंट है, तो हम कैसे इन लोगों में रह सकते हैं या कैसे इनमें रहना पसंद करते हैं? ओके, दिस इज द क्वेश्चन दैट ही हाईलाइटेड. ठीक है, उसने ये क्वेश्चन रेज किया है इन फ्रंट ऑफ हिज फादर. बट जब उसका बाप उससे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द आंसर, कि तुम बताओ कि क्या है,
तब अली ने क्या कहा है? मुकद्दस, बेटा अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है, द लॉ ऑफ इस्लाम वुड रूल द वर्ल्ड। इर्तिजा, आर यू देयर? ओके, आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, इतना तो बता दें इफ यू आर नॉट आंसरिंग मी। मैम जी सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन वैसे जो है ना बात जवाब निकाल इतना रहे तो हैं, दे बोल दें कि रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं। जी मैम सुन रहे हैं। तो फिर बेटा बता दे, मैं पागलों की तरह लगी हुई हूँ, आप लोग म्यूट करके खुद को बैठे हैं या शोर आ रहा है। दिस इज नॉट द वे। वेयर इज इर्तिजा? रियाज साहब तो आए नहीं है ना, सवाई शोर के और कुछ नहीं आया उनकी तरफ से। आप लोगों की प्रेजेंस ये मैटर करती है कि आप लोग रिस्पॉन्ड तो करें। ओके, द लॉ ऑफ इस्लाम वुड रूल द वर्ल्ड। अब उसने यहाँ पे एक्सपोज किया है कि क्या उसकी मेंटालिटी है। वो ये यहाँ पे उसकी जो मेंटालिटी है ना, वो ये बता रही है कि वो जिहाद की तरफ जा रहा है। द लॉ ऑफ इस्लाम वुड रूल द वर्ल्ड, द स्किन ऑफ द इनफाइडल वुड बम ऑफ अगेन एंड अगेन, द ज्यूज एंड क्रिश्चियंस वुड बी राउटेड। वो कह रहे हैं इन सबको अब मुझे मुंतशिर करना है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे हैं। वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे ज्यूश और क्रिश्चियंस की सोसाइटी है ना, तो उसको अपना आप बहुत छोटा लगता है, बहुत लिमिटेड लगता है कि उनके रूल्स, उनकी नॉर्म्स, उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। द वेस्ट वाज अ सिंक ऑफ हिपोक्रेट्स। कि जो वेस्ट है, वहां के जो लोग हैं, वो एक इवल्स में मुब्तला है। और इवल्स कौन से हैं? वो हिपोक्रेट भी हैं, एडल्टर्स भी हैं, होमोसेक्सुअल हैं, ड्रग टेकर्स हैं, प्रोस्टिट्यूट हैं। इसके अलावा उसको वेस्ट में कोई एक अच्छी बात भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा फिल्थ है, ये सारा एंटी इस्लामिक लिविंग सोसाइटी है। और यहाँ पे हम अपनी स्किन को कैसे बचा के चलें, हम यहाँ पे कैसे रहें जहाँ पे उनकी अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है। As Ali talked, Parvez looked out the window as if to check that they were still in London. अब उसकी बातें सुन के वो हैरान भी हुआ है और परेशान भी हुआ है, शॉक्ड है। वो ये कह रहा है कि हम वाकई लंदन में रह रहे हैं और ये लंदन में रह के इसकी ये मेंटालिटी है। Underline these lines. My people have taken enough. If the persecution does not stop, there will be jihad. I and millions of others will gladly to give our lives for the cause. अब वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को नहीं बचाना चाह रहा, वो इस पूरी सोसाइटी को चेंज करना चाह रहा है। ठीक है, ये जिस परसिक्यूशन की बात कर रहा है, इफ द परसिक्यूशन डज नॉट स्टॉप मींस दिस हॉस्टिलिटी, ठीक है, दिस इल ट्रीटमेंट विद द मुस्लिम्स, इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड, देन they will give up their lives, they will do jihad. अब यहाँ पे एक जो फनेटिक का वर्ड यूज किया गया ना, ये लाइंस आपने अंडरलाइन करनी है। ये परवेज की जो मेंटालिटी है कि उसका बेटा फनेटिक हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, तो ये यहाँ पे एक्सपोज हो रही है। ये लाइंस रिवील करी हैं अली की मेंटालिटी अकॉर्डिंग टू परवेज, कि वो इस हॉस्टिलिटी के खिलाफ खड़ा हो रहा है जो वो वहां पे फील कर रहा है ज्यूश और क्रिश्चियंस में। ठीक है, टुवर्ड्स देम। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं करते, तो हमें भी फिर इनके खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। बट वाई परवेज सेड, फॉर अस द रिवॉर्ड विल बी इन पैराडाइज। पैराडाइज मतलब अब उसको अपने बेटे की मेंटालिटी इसलिए पता चल गया, और दैट इज व्हाई परवेज सेड दैट माय सन इज फैनेटिक।
कि ये पागल हो गया है, इसे इस दुनिया में वही मुजाहिदों वाला है कि हमें जो रिवॉर्ड है वो पैराडाइज में मिलेगा. फाइनली एज परवेज eyes filled with tears, the boy urged him to mend his ways. But is that possible? Parvez asked. Pray, Ali said. Pray beside me. ठीक है, पहला रूल ऑफ इस्लाम कि अपनी नमाज ठीक करो, मेरे साथ नमाज पढ़ा करो. Parvez called for the bill and ushered his boy out of the restaurant. उसने उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाया, ठीक है, और उसने बिल मंगवाया. As soon as he was able, he could not take any more. Ali sounded as if he had swallowed someone else's voice. अब उसे अली की आवाज अली की नहीं लग रही थी. It seems that उसके अंदर कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको जिन्न हो गया है या इसके साथ कोई और बदरूह चिमट गई है, तो वो उसको ऐसे लग रहा था कि ये अली नहीं बोल सकता. अली की परवरिश जिस ब्रिटिशर्स मेंटालिटी के साथ या उस सोसाइटी में या उनकी नॉर्म्स के साथ उसको लेविश लाइफ देके जिस तरह से परवेज ने उसकी की थी, उसकी परवरिश यहाँ पे उसको अपना बेटा अपना नहीं लग रहा था, उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी. On the way home, the boy sat in the back of the taxi as if it were a customer. Underline this line. This shows the communication gap. This line shows that both father and sons are poles apart. ठीक है, उनकी कोई भी चीज वो एक पॉइंट पे है नहीं, कहीं पे भी नहीं है. Not in their life, not in their thoughts, not in their hobbies. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे दोनों एक पॉइंट पे नहीं है. What has made you like this? Parvez asked him, afraid that somehow he was to blame for all this. Is there a particular event which has influenced you? अब परवेज ने फिर डरते डरते उससे पूछा है कि तुम में ये सब चीजें कहाँ से सीखी हैं, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने तुम्हें इतना इंस्पायर कर दिया? एंड द आंसर इज, अंडरलाइन दिस लाइन, लिविंग इन दिस कंट्री. उसने वो जो चीजें लंदन में फील की हैं, उसको उसकी अपनी आइडेंटिटी को लेके, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके उसको इग्नोर किया गया है, या बीइंग मुस्लिम्स जो चीजें वहां पे प्रैक्टिस हो रही हैं, वो उन चीजों ने उसको ये सब सोचने पे मजबूर किया है. सो द आंसर इज लिविंग इन दिस कंट्री. बट आई लव इंग्लैंड, परवेज सेड, वॉचिंग हिज बॉय इन द मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वो कह रहे हैं कि मुझे फिर भी इंग्लैंड से प्यार है, चाहे वो मेरी अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मुझे स्पेस नहीं दे रहे हैं, वो मुझे फैसिलिटीज नहीं दे रहे, वो मुझे इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे, सब कुछ उसको कबूल है, सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लैंड को वहां पे रहना. 10 मिनट्स के बाद मीटिंग हमारी खत्म हो जाएगी एंड वी विल ज्वाइन अगेन. अच्छा, देन लेट यू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग हियर, दैट इज द प्रॉब्लम, ही रिप्लाइड. कि परवेज का क्या है कि वो यहाँ पे उस फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है. वो कह रहे हैं दे लेट यू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग हियर. वो जिस तरह ड्रिंक करना चाहता है, वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशनशिप में है, वो जो लेविश लाइफ वहां पे गुजारना चाहता है, जो 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 भी वो अपनी लाइफ में समझता था कि उसको करना है, जो उसके गोल्स थे, जो इंजॉयमेंट, जो प्लेजर्स वो एंजॉय करना चाहता है, वो सब लंदन में है. और यही प्रॉब्लम है अली को. दिस इज द प्रॉब्लम, ही रिप्लाइड, कि यही जो हम इस्लामिक रूल्स को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे और हम एक फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन years, Parvez could not see straight. He knocked the side of the car against a lorry, ripping off the wing mirror. They were lucky not to have been stopped by the police. Parvez would have lost his license and therefore his job. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि उसका फिर एक एक्सीडेंट होते होते बचा एक ट्रक के साथ. Getting out of the car back at the house, as he got out of the car, Parvez stumbled and fell in the road, scraping his hand and ripping his trousers. He managed to haul himself up. The boy did not even offer him his hand. So here, the first time
एक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अली मुझे गलत लगा और उसका बाप ठीक लगा है। क्यों? टेल मी द रीजन। जी मैम जी, उसको अपने बाप को उठाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाना चाहिए हाथ था। आगे बढ़ाना चाहिए था। इस्लाम ये टीचिंग तो नहीं देता ना। इस्लाम क्या कहता है, अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करो। और यहाँ पे उनका पॉइंट चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो, उनका पॉइंट चाहे कोई भी उनका पॉइंट है, लेकिन इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स है यहाँ पे अली खुद उसको निगेट कर रहा है ना। जब उसका बाप गिरा है, उसको ठोकर लगी है, वो गिरा है, तो उसको अपने फादर को संभालना चाहिए था। Pervez told Bettina he was now willing to pray if that was what the boy wanted. अब यहाँ पे परवेज उसके पॉइंट से एग्री कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है, बेटीना को कहता है कि ठीक है, I will start praying. If that would dislodge the pitiless look from his eyes. कम से कम वो मुझे एक, वो जो pitiless, जो बेरहमी से वो मुझे देखता है, कम से कम उसकी आईज की जो मैं गेज बर्दाश्त करता हूँ, कम से कम वो तो खत्म हो जाएगी ना। But what I object to, he said, is being told by my own son that I am going to hell. ठीक है, अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा ही मुझे ये कह रहा है कि मैं हेल की तरफ जा रहा हूँ। What had finished Pervez off was that the boy had said he was giving up his accountancy when Pervez had asked why. Ali had said sarcastically that it was obvious. वो कह रहे ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूंगा उसके साथ, उसको खुश करने के लिए, ताकि उनकी आपस में जो फ्रेंडशिप है, जो फादर सन का रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल हो जाए। बट यहाँ पे उसको एक और ऑब्जेक्शन है कि अली अपनी स्टडीज को छोड़ रहा है, और उसकी रीजन वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन कल्टिवेट्स एन एंटी रिलीजियस एटीट्यूड, कि अगर मैं ये स्टडी करता हूँ तो ये स्टडी मुझ में एक एंटी रिलीजियस एटीट्यूड डेवलप कर देगा. दैट इज व्हाई ही इज क्विटिंग हिज एजुकेशन. And according to Ali, in the world of accountants, it was usual to meet women, drink alcohol, and practice usury. And now he's discussing all three important evils that he has to do while doing his job. But it's well-paid work, Parvez argued. For years, you have been preparing. Ali said he was going to begin to work in prisons with poor Muslims who were struggling to maintain their purity in the face of corruption. अब उसने अकाउंटेंसी को छोड़ के जो काम अडॉप्ट किया है, दैट इज टोटली अगेंस्ट हिज फादर्स विल. उसका फादर इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो अपनी एक बहुत हाई स्टेटस और अच्छी जॉब छोड़ के तो वो उन पुअर मुस्लिम्स को हेल्प आउट करे इस रास्ते में जो स्ट्रगल कर रहे हैं. फाइनली एट द एंड ऑफ द इवनिंग, एज अली वाज गोइंग टू बेड, ही had asked his father why he did not have a beard or at least a mustache. अब वो उस खुद तो चेंज हुआ है, अब वो आस्ते आस्ते अपने फादर को भी चेंज कर रहा है यहाँ पे. I feel as if I have lost my son, Parvez told Bettina. अब वो हर बात किसके साथ शेयर कर रहा है? बेटेना के साथ, not his wife. ठीक है. I can't bear to be looked as if I am a criminal. I have decided what to do. अब वो क्रिमिनल के साथ इसको रिलेट कर रहा है, ऑल्दो इट्स अ सिंबल ऑफ मुस्लिम कि अगर उनकी बियर्ड है या मॉस्टैच है. ओके, व्हाट इज इट? आई एम गोइंग टू टेल हिम टू पिक अप हिज prayers mat and get out of my house. It will be the hardest thing I have ever done, but tonight I am going to do it. अब वो कह रहा है कि इसका हल यही है कि मैं इसको थोड़े दिन घर से बाहर निकालूं ताकि ये इसका दिमाग ठीक हो जाए और ये वापस अपने रास्ते पे आ जाए. But wow, must not give up on him, said Bettina. Many young people fall into cults and superstitious group. It does not mean they will always feel the same, she said. Parvez had to stick by this boy, giving him support until he came through. Now see, अब इस पे देखिए बेटीना उसको गाइड कर रही है, और बेटीना कौन है? एक ब्रिटिशर है, white women hai. Now the Britishers are telling
the South Asian people, their subjects, how to act, how to behave in that situation. ठीक है? And this is very ironic. वो उन्हीं के अगेंस्ट है और वही गाइड कर रहे हैं कि इसके साथ क्या किया जाए. Parvez was persuaded that she was right, even though he did not feel like giving his son more love when he had hardly been thanked for all he had already given. वो उसकी बात मान रहा है, ठीक है, जबकि उसको पता है कि उसका बेटा जो है वो थैंकफुल नहीं रहा अभी तक जो उसने किया और आगे क्या करेगा. Nevertheless, Parvez tried to endure his son's looks and reproaches. He attempted to make conversation about his beliefs. अब वो दोबारा उससे बात करने के लिए सोच रहा है. But if Parvez ventured any criticism, Ali always had a brusque reply. Important line है, please underline it. अब परवेज की हर बात का जो रिप्लाई है वो बहुत ब्लंट है, ठीक है. ब्लंट मीन आयरॉनिक है, बहुत शार्प रिप्लाई दे रहा है. अच्छा, स्टार्ट में इसके गेज की बात की थी और फिर शार्प रिप्लाई की बात की थी, उसके बाद उसकी साइलेंस की बात की थी. जो शार्प टंग है ना, जो इसका ब्लंट रिप्लाई, इट शोज रिबेलियस एटीट्यूड, एंड गेज इज द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी. जो हम घूरते हैं ना, ठीक है, और वो अपने बाप को जिस नजर से देख रहा है, जिस नजर से वो बचना चाह रहा है, जैसे अभी उसने प्रीवियस लाइंस में कहा है ना कि एटलीस्ट मैं नमाज शुरू करता हूँ ताकि मैं उसकी गेज से बच सकूं, उसकी पिटीलेस साइड से बच सकूं. तो इट शोज द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी. ठीक है, आप जबान से नहीं, आप अपने बिहेवियर से शो करते हैं दैट यू हेट समवन. Okay. Ali accused Parvez of groveling to the whites. In contrast, he explained he was not inferior. There was more to the world than the West, though the West always thought it was best. Underline these lines. अब वो अपने फादर को इस चीज के लिए एक्यूज कर रहा है कि तुम बहुत खुशामद करते हो इनके लिए, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा चापलूसी करते हो और तुम अपने आप को इंफीरियर समझते हो तो करते हो ना. जब हम किसी की बहुत ज्यादा हम्बल होकर किसी से बात करें तो आप, इट मीन्स कि अगले को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो दैट एज इफ ही इज हाई इन स्टेटस. ठीक है, आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं. तो ये चीज अली को बहुत बुरी लगती है अपने फादर में, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हारी ये एक्सेप्टेंस, उनको सुपीरियर एक्सेप्ट करना, इट शोज दैट you also think that West is best as they think themselves best.